forms the core, the theme of our film. A lot of times in life, we do feel low and down. I hope this song serves as an inspirational, a motivational song. We are trying to tell you this song through action, which I think is the USP of our film. We've tried to compile never seen before action for you. Uh, I just hope that staying fit, going out there and being prepared for life is an important aspect. So I just hope that this song works for people who need that. So I'd like to call Tiger and Shraddha and have them speak a few words. Tiger, you want to say something about this song? Hi guys. Sabir sir will say a few words to you first. Like I said, being prepared for life is an important aspect in the film. Being fit is an important aspect in the film. There's a portion in the film where Tiger's character, Ronnie, is preparing for life, training for life. I needed a song that would stay in people's mind and hearts much before, much after, the film is gone. That works as an inspirational, motivational song for young kids to stay fit. You can probably listen to it in the gym while working out. You can probably listen to it while driving, or if you're feeling down or low, without sounding pompous. And I don't think Shraddha knows about this, but I wrote this song as a piece of dialogue for Ronnie's Guruji to tell him, and then we converted this into a song. I hope that you like it. Good evening. I hope the song serves as a source of inspiration for whoever wants to get fit or whoever wants to start something. It doesn't only have to be the martial art, but it has anything, any new venture, any new fine art, any new expression, any youth or any adult or anybody who would like to start something. I hope this helps spark that initiation within each one of you. And it's a very special song. I'm very thankful to Sabir sir to cut such a beautiful song. It shows the growth and the chemistry of both our characters. It shows the training montage. It shows the the two rebels going through a certain training and getting better at something. And yeah, would you like to add something? जब मैंने इस वीडियो को देखा मैं ऑलमोस्ट सोफे से गिर गई. आई स्टिल कांट बिलीव इट कि हमारी हिंदी फिल्मों में पहली बार एक एक्टर आए हैं जो इस किस्म का एक्शन कर सकते हैं. आई थिंक कि बहुत बहुत गर्व की बात है कि पहली बार हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा एक्टर है जो एक्शन के लेवल को इतनी ऊंचाई तक लेके जा रहा है. बहुत बहुत बड़े गर्व की बात है. आई थिंक कि नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट everybody is really really proud of you, Tiger. And मैंने भी थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया है तो आई मीन वट एवर हैड टू बी सेड साबिर सर और टाइगर ने कह दिया है. बहुत ही मोटिवेशनल गाना है, गेट रेडी टू फाइट. एंड उम्मीद है कि लोग इंस्पायर्ड हो जाएंगे. मैं हमेशा इंस्पायर होती हूँ जब मैं टाइगर को देखती हूँ, एवरी सिंगल टाइम. And I just hope that everybody also keeps getting inspired. We'd like to answer any questions if you have. Yeah? Tiger, it might be your favorite gym number also. मतलब जब आप workout करते होंगे तो ये यही गाना सुनते होंगे. What do you want to say? Yeah, absolutely. You hit the nail, yeah. I think this is definitely my favorite track, or one of my favorite tracks from Bagi. I'm a very physical person. I love things that motivate me, and this song is definitely going to serve as a motivation throughout my life, I think.
it's something that we're hoping will last beyond the film. And you know, just for, like I said earlier, and like Sabir sir had mentioned, and like Shraddha had mentioned, if it can, you know, serve as a source of inspiration for those who'd like to start. आप ये सॉन्ग किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स में से, या मतलब जो प्रॉब्लली वरुण धवन से था, मतलब कोई भी ऐसे किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे? मुझे डेडिकेट कर सकते हैं. ये song? Why? But I want this song to be dedicated. Please, Tiger. Of course, I dedicate to Shraddha. Halanki, Shraddha doesn't need it because she's already dedicated, you know, to her art and to her work. But I dedicate it to the youth of our country who want to, you know, get fit and who want to express themselves in some way or the other. So yeah. श्रद्धा, आप किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे? अपने आप को? अभी सिंस मैंने खुद टाइगर का डेडिकेशन ले लिया है, बट आई थिंक टाइगर सेड अ वेरी गुड थिंग टू डेडिकेटेड हमारे कंट्री के यूथ को, हम सबको एक्चुअली, टू ऑल ऑफ यू गाइज हियर ऑल्सो, हम सबको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है. एंड हियर्स होपिंग कि ये गाना जो है सबका नया मोटिवेशन सॉन्ग बन जाए. Tiger, you know, this song is about inspiration. So, who is your inspiration from the industry? Who inspired you the most? जी मैं ऋतिक रोशन जी को बहुत मानता हूँ. I'm lucky to, you know, be in the same industry as him, and I seek inspiration from him no matter whatever I do. I think on screen and off screen he's a very hard-working person, you know. एक्टिंग से लेकर एक्शन, बॉडी लैंग्वेज, डांसिंग, वो जो भी करते हर मतलब बहुत शिद्दत से करते, बहुत मेहनत करते हर चीज़ को लेकर. आई थिंक ही रियली pushes his extreme in each facet of the craft. So I really respect that man for that. Yeah. Who is my idol? मैं definitely I have always been a huge Hrithik Roshan fan also, but I've also हमेशा से मैं एक प्रियंका चोपड़ा fan भी रही हूँ, और आई फील कि जो काम उन्होंने किया है वो कंसिस्टेंटली अपने आप को प्रूव करती आ रही हैं. तो आई वुड से प्रियंका चोपड़ा. टाइगर आपसे एक सवाल है, श्रद्धा आपसे भी लोगों से सवाल है कि कुछ साल पहले सलमान खान की फिल्म आई थी बागी, उसमें सलमान को एक नए अवतार में लोगों ने देखा था. तो उस वक्त बॉडी बिल्डिंग का चलन नहीं था, सलमान को ही देखकर लोग उल्टा आयरन मारने लगे. सलमान को कुछ सीखा है बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए, कभी से कोई टिप्स मिले? जी कभी मौका नहीं मिला उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए, पर आई एम श्योर इफ़ आई मीट द मैन, यू नो, आई बी ऑस्ट्रक. मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका, पर आई डोंट थिंक आई हैव हैड द चांस ऑफ गेटिंग एनी टिप्स फ्रॉम हिम सर. जैसे मैंने कहा, मैं ऋतिक रोशन जी को बहुत मानता हूँ. उनसे कई बार मुलाकात हुई और मुझे मौका मिला उनसे काफ़ी टिप्स लेने इस मामले में, बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में. वी endorse the same brand together called HRX. तो उसे लेकर हम, you know, it revolves around fitness and just basically empowering the youth of our country to be fit. So yeah. टाइगर इन अ रिसेंट इंटरव्यू सलमान, बचपन से हमने सलमान को देखा, आप कितना एडमायर करते हो? बिल्कुल, उन्होंने मेरे डैड के साथ फिल्में की हैं, तो तब से आज तक मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. दैट्स बट ऑब्वियस. और वो यू नो द वे दैट उन्होंने अपना नाम बनाया है वो बहुत इंस्पायरिंग है. नो वंडर ही हैज़ crores and crores of fans. Thank you. यहाँ कमांडो जो आने वाली है उसमें विद्युत कुछ अलग लेवल पे ले जा रहे हैं, तो आखिर ये किस लेवल तक जाएगा? आई थिंक जितने लोग ये कोशिश कर रहे हैं इस टाइप की फिल्में बनाना और ऑडियंस को देना, ये अच्छी बात है. एक्शन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमोशन है. बहुत मेहनत लगती है एक अच्छी एक्शन फिल्म ऑडियंस तक पहुंचाने की. हमने बहुत कोशिश की है, पूरी मेहनत की है, बहुत कोशिश की है कि हम एक अलग फिल्म बनाएं. जब से हमने ये फिल्म शुरू की, हमें एक चीज़ पता थी कि कोई गाड़ी एक्सप्लोड नहीं हो रही है, कोई गन फायर नहीं है,
रॉनी और सिया दोनों कोई वेपन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये खुद लड़ रहे हैं, शायद थोड़ी सी आपको देखने को मिला होगा। तो हम उस मामले में कोशिश कर रहे हैं कि पुश करें और ऑडियंस को एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन फिल्म दें। बात करें आपने पोस्टर की बात करें, आप गाली के टर्म पे बैठे हुए नीचे लिखा हुआ बागी, कहीं से कुछ रिलेट नहीं हो पा रहा है। कुछ पोस्टर ऐसे होते हैं पूरी फिल्म समझ में आ जाती है, रिलेशन होता है पोस्टर को, लेकिन इस पोस्टर से कुछ अलग ही है बिल्कुल। कुल मिला के इट्स जस्ट हम खाली दोनों कैरेक्टर्स के तेवर दिखा रहे हैं इसमें जी। हालांकि कोई रिलेशन नहीं है, यू राइट, इट्स जस्ट वी शोइंग द एटीट्यूड ऑफ द कैरेक्टर्स। श्रद्धा आपसे ये सवाल है कि आपके लिए स्टंट करना, आपके लिए एक्शन करना कितना मुश्किल था इस फिल्म में, क्योंकि हार्डकोर एक्शन आपने भी किया है, और आपके लिए बॉलीवुड या हॉलीवुड में आपके फेवरेट एक्शन हीरो कौन सा है? इस फिल्म में एक्चुअली मैंने जितना मुझसे हो पाया एक्शन, जितने कम समय में ट्रेनिंग समय मिला उतना कर पाई। कुछ सीन्स हैं मेरे एक्शन के एंड बट डेफिनेटली उससे आप बिल्कुल भी नहीं कंपेयर कर सकते टू टाइगर। बहुत चैलेंजिंग था एंड बहुत अच्छा लगा कि दोबारा एक फिल्म में कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिला। ऑल थैंक्स टू साबिर सर, उनका बिलीव था। मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे पता नहीं था कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं इतने कम समय में, बट ऑल थैंक्स टू हिम एंड हिज फेथ। जब आप में कोई ऐसे बिलीव करता है देन इट्स रियली नाइस टू हैव दैट। और मेरे फेवरेट एक्शन हीरो ऑब्वियसली मेरे राइट पे बैठे हैं, मिस्टर टाइगर श्रॉफ। आई थिंक वो हम सब के फेवरेट, नोबडी कैन डू एक्शन लाइक हिम। Don't want body doubles because you don't like taking someone else's credit. Yes, sir. So aren't you afraid of injuries, and did any injuries happen in your career so far? Yes, sir. Throughout this film, it was a very physically demanding role. That being said, हम एक अलग किस्म के एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे लेकर काफ़ी मुश्किल स्टंट्स भी थे इसमें। हालांकि वर्कशॉप्स बहुत हो चुके, ट्रेनिंग तैयारी बहुत की है हमने इस मूवी के लिए, इस किरदार के लिए, तो उसे लेकर आई थिंक आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स कमिंग माय वे। हालांकि वो डर हमेशा रहता था मुझ में हर स्टंट करने से पहले, लेकिन वो डर से मुझे ताकत मिलती थी, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट फियर आई यूज्ड टू परफॉर्म बेटर। And how does that take your acting, and or what does he say to you? सॉरी सर। How does that Jackie Shroff, how does he take your acting scenes, and is he scared of you? आई थिंक काफ़ी बिंदास आदमी है, एज यू ऑल नो। तो हाँ एग्जैक्टली, तो इस मामले में भी ही नोज़ कि उनको पता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो ही नोज़ आई एम रेडी फॉर दीज थिंग्स, इट्स ओके। टाइगर साबिर सर ने कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा कि ये पिक्चर रामायण से इंस्पायर्ड है, तो आप भगवान श्री राम से कितना इंस्पायर्ड है रोल को करने के लिए? क्योंकि आपका नाम भी रोमी और सिया रखा गया, तो वो भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है नाम और पिता। जी बिल्कुल, गुड ऑब्जर्वेशन। तो कुछ एक मिनट बोलने तो बोल तो दिया सर। उतना ही बोलना था। क्या बताओ? भगवान श्री राम से आप इंस्पायर्ड हैं और क्या तैयारियां की रामायण के बारे में कुछ पढ़ा? ये राम जैसे लगते हैं, इसी के लिए इनको कास्ट किया। टाइगर, क्योंकि आपने इतनी अच्छी स्किल्स हैं एक्शन की, कुछ साल पहले अक्षय कुमार आए थे, उनको उनकी एक्शन की वजह से बहुत सारी फिल्में मिली, लेकिन एक बार किसी डायरेक्टर ने कहा कि यार ठीक है फिल्म का स्लॉट नीचे जा रहा है तो अक्षय से एक्शन करा लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि डायरेक्टर्स या कास्टिंग डायरेक्टर आपको इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं और आपको कुछ नया मतलब नहीं करने का मौका मिल पा रहा है? सर ये मेरी दूसरी पिक्चर है, तो आई थिंक पता नहीं यार, आई थिंक इट्स माय सेकंड फिल्म। किस्मत अच्छी है मेरी कि मुझे ऐसे किरदार मिल रहे, और मुझे एक अलग पहचान बनाना है इंडस्ट्री में। इतना सारा कंपटीशन है, तो मुझ में खासियत क्या है, मैं अलग कैसे हूँ भीड़ से, तो बस पहले एक बार वो साबित कर लूँ, उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा सर। आपने कई बार एक्सेप्ट किया है कि आप व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं, आप उनके इंस्पायर हैं। यस सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप उनकी हर प्रॉब्लम में, आप उनकी हर चीज़ में आप उन्हें सपोर्ट करते हैं? जैसे कि हर प्रॉब्लम में जैसे कि इस समय
या करना चाहिए? जहाँ पे एक्शन चल रहा है वो सिर्फ एक ही जगह पे है और वो है बागी, जो 29 अप्रैल को रिलीज हो रही है, और कहीं पे इस किस्म का एक्शन नहीं चल रहा। Sir, that's not my business. मेरा business नहीं है. I'm sorry. आप दोनों तीन वाले, आप दोनों तीन वाले। स्टंट में तो मानते हैं कि श्रद्धा आप बोलती हैं कि ये ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन डांस में आप भी कम नहीं है, तो आप ज़्यादा खुद को अच्छी डांसर मानती हैं कि उनको? मैं बताऊँ? जो मेरे राइट पे बैठे हैं वो वही आई फील बहुत ही कमाल के डांसर है, बहुत ही कमाल की एक्शन करते हैं, ही इज़ जस्ट अमेजिंग। जी मैं आई लाइक टू डिफर फ्रॉम दैट। इसमें एक गाना है लेट्स टॉक अबाउट लव करके। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और हम सेम स्कूल में भी थे। तो जहाँ तक मुझे याद है, आपको शायद पता भी होगा, आई मस्ट हैव टोल्ड यू ऑल दिस इन प्रीवियस इंटरव्यूज, बट श्रद्धा हमेशा जीती थी हर कंपटीशन में, हर टैलेंट सिर्फ शो, हर बचपन में, डांस हाँ? कंपटीशन। सिर्फ बचपन में मैं इनको हराती और थी। एक किस्सा भी बताता हूँ अभी इसके बारे में। तो हमारा एक स्कूल का एक एनुअल डे था और मैं एक पल का जीना गाना पे नाचने वाला था, और उस वक्त श्रद्धा ने मुझे कोरियोग्राफ किया। तो शी इज़ बेसिकली टॉट मी हाउ टू डांस ऑल्सो। तो वट एवर क्रेडिट इज़ फॉर श्रद्धा। एंड there's a song लेट्स टॉक अबाउट लव, अगर आपने देखा इस मूवी की, लेट्स टॉक अबाउट लव। माइक चेक, ठीक है? ओके। तो श्रद्धा कपूर ने हील्स में नाची, ठीक है, और उसमें एक टर्न टेबल पे था। तो शी वॉज डांसिंग ऑन हील्स ऑन अ टर्न टेबल एंड शी वॉज मैचिंग अप टू मी, ठीक है। मुझे लगा कि आई वॉज डूइंग अ गुड जॉब क्योंकि मैं सूट में नाच रहा हूँ, ये वो वगैरह। सो आई थॉट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी, बट शी वॉज इन अ ड्रेस, शी वॉज इन हील्स। तो आई हैव टू गिव हर क्रेडिट, शी इज नॉट ओनली मैच मी, शी इज surpassed me and she's doing a superb job. So big hand for Shraddha Kapoor. आई थिंक please. बहुत स्वीट, ही इज़ वेरी, बहुत, ये हमेशा मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छा बोलते हैं, एंड इट मेक्स मी फील रियली रियली नाइस। ही इज़ रियली टू स्वीट। हकीकत है तो आई really mean it. I really mean it. फिल्म में जैसे है कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो does it really apply with your career also? Like this is something to the Bollywood also you're trying to say? कह सकते हैं? हकीकत है सर, अभी तो हम तीनों ने स्टार्ट किया है और कोशिश ये है कि बागी 2 भी बने एक दिन। उम्मीद तो है, इफ़ यू गाइस लाइक दिस। Have promotional songs which are heavy numbers. What makes you inspirational song is It's not a promotional song. It is the theme of our film. It's used throughout the film, and there was no strategy to sort of use a promotional song because we really felt for this song, and we wanted it to come out and have the youngsters listen to it, or anybody listen to it, and probably get motivated like we did during the making. श्रद्धा, एक्शन हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग करना, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू ट्राई? जितना भी मुझसे हो सके, हम सबके पास एक लाइफ है, तो जितना हम, आई फील कि जितना मैं अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकूं, उतनी कोशिश करूंगी, उतना कोशिश करूंगी, हार्ड वर्क करती रहूंगी, एंड डेफिनेटली जो ऑडियंस का प्यार मिलता है, दैट्स ऑल आई एम देयर फॉर, सो दैट्स ऑल दैट आई ऑलवेज वांट। अगर जैसे कि श्रद्धा ने कहा कि आप एक अलग लेवल का एक्शन लेके जा रहे हैं, लाइक आपके जैसा एक्शन हीरो बॉलीवुड में नहीं है, सो आई वुड लाइक टू आस्क मोस्ट ऑफ यू दैट डू यू थिंक दैट टाइगर श्रॉफ इज सेटिंग वन बार एंड ही इज क्रिएटिंग वन जॉनर ऑफ हिमसेल्फ इन बॉलीवुड एंड दैट विल बी अ टफ कंपटीशन फॉर ऑल द अदर एक्शन हीरोज? He is unique. I think Shraddha or Tiger can say more about. यार सर, मैं मजदूर आदमी हूँ। आई रियली लाइक टू वर्क हार्ड एट एवरीथिंग। इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, मेरी जो कंटेम्प्रेरीज है, मेरे जो सीनियर्स है, आई सी कंस्पिरेशन फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। मुझे बस एक ही चीज़ पता है कि अगर मुझे एक पहचान बनाना है मुझे, तो आई हैव टू try and stand out a bit. I'm not saying stand up, I'm saying stand out and try and be a little different.
so people notice my hard work. उसे लेकर मैं you know, I was blessed with you know, I had a strong base in martial arts, and since Akshay Kumar ji had already started this trend, you know, I thought maybe people will accept me if I come and show a little bit of martial art in this film. So, and in Hero Panti as well. And luckily I was accepted for my action and a little bit for my dancing as well. No, I'm an actor, so I'm open to all kinds of films. Right now I'm getting mainly action films. So I'll take what I get. मैं choosy आदमी नहीं हूँ sir. जी लास्ट क्वेश्चन. उससे बहुत एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है, क्या आपको कुछ घबराहट है? एक्चुअली नहीं, मतलब इसके लिए हमने मेहनत की थी. ये पूरी कोशिश थी हमारी तरफ से कि लोगों को ये पसंद आए, इसलिए शायद थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, बट नहीं है, ठीक लग रहा है. One last thing. I'm very sorry I forgot. Before we close this, no song is complete without the person who actually composed it. ये नए लड़के हैं जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है. He's sitting right here amongst you all. Pranay Rijja is a friend of mine. He's from advertising. Please give him a big hand, guys. You want to say something? Sure. Thank you. Thank you guys. 29th of April. भूलना मत. Thank you.